નમસ્કાર મિત્રો, આજે સીધું ને સટમાં આપણી સાથે દિનેશ કે વોરા છે. આમ તો દુનિયાભરના ગુજરાતીઓ માટે વોરા સાહેબ છે ને કોઈ અજાણ્યું નામ નથી, પણ ન્યૂઝ ટાઈમના એ સંસ્થાપક એડિટર છે. અને તમારામાંથી જે મિત્રોને સાચી વાત, ટકોરાબંધ વાત એ જો સાંભળવી હોય તો એ દિનેશ કે વોરાની ચેનલ પર જઈને એમને સાંભળવા જોઈએ, કારણ કે એમનું જે જ્ઞાન હોય છે એ ફેંકાફેંક વાળું નથી હોતું. એ છે ને ભારત સરકારમાં રહ્યા છે અને ભારત સરકારના વિવિધ વિભાગોમાં એમણે કામ કર્યું છે, દેશ અને વિદેશમાં કામ કર્યું છે. અને આજે આપણે જે વાત કરવાના છીએ આ એપિસોડમાં, એ અમેરિકાના અખબારે માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નિર્ણયો અંગે અથવા તો એમની કામગીરી વિશે જે ધડાકો કર્યો છે એના વિશે આપણે જેને દિનેશ વોરાએ જે સ્કૂપ કર્યું છે એની આપણે વાત કરવાના છીએ. એટલે હું જાજુ બોલું એના કરતા दिनेश जी अपनी साथे बात करें. दिनेश जी, हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के नेताओं से बात करी और उन्होंने डिप्लोमेसी में एक इजराइल फैक्टर लाया है, ऐसा आपका कहना है, तो उसके बारे में जरा बताइए ना, न्यूयॉर्क टाइम्स से क्या कहा है? नमस्कार आप सब। हरि भाई, आवाज ठीक प्रॉब्लम मुझे लगता है बहुत आप दो जगह से जुड़े हैं इसलिए मेरे ख्याल से मुझे लगता है आप इसको एक नया लिंक की तरह आप बात करिएगा दूसरे लैपटॉप से आप। हाँ प्लीज समथिंग મિત્રો થોડીક રાહ જોઈએ, કારણ કે દિનેશજી આપણી સાથે જોડાય છે. દિનેશજીની પાસે ખૂબ મહત્વની માહિતી છે અને એ માહિતી એ આપણને ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થશે. ન્યુયોર્ક ટાઈમ્સે જે સ્કૂપ કર્યું છે એ સ્કૂપ એમણે એમની ચેનલ ઉપર પણ સવારે જ એના વિશે એનાલિસિસ કર્યું છે અને હું એ એનાલિસિસથી એટલો પ્રભાવિત થયો કે મને એવું લાગ્યું કે મારે એ વિશે દિનેશજીને જોડવા જોઈએ. અને એટલા માટે જ મેં દિનેશજીને જોડાવા માટે વિનંતી કરી હતી અને આજે આપણી સાથે છે. આમ તો જીએસટીવી ના દર્શકો માટે અમે બંને જણા ઘણી વખત એક જ પેનલ ઉપર ચર્ચા માટે, ડિબેટ માટે જોડાતા રહ્યા છીએ. અને આમ પણ દિનેશજી ઇન્ડિયન રેવન્યુ સર્વિસમાંથી નિવૃત્ત થયા છે. એ સામાન્ય રીતે એનો ઉલ્લેખ નથી કરતા, પરંતુ મને એમ લાગે છે કે મારે એમનો પરિચય હું જ્યારે આપું ત્યારે એ એમની જે કામગીરી રહી એના વિશેનો ઉલ્લેખ ન કરું એવું ન બને. એટલા માટે કે એમની જે વાત છે, એ જે વાત કરે છે એ વાત એટલી મહત્વની હોય છે અને નક્કર હોય છે. અને એટલા માટે જ આપણે આજે જ્યારે એમની સાથે વાત કરવાના છીએ ત્યારે એ એક એક વાક્ય એમનું એ છે ને તમારે માટે પણ બહુ જ મહત્વનું રહેશે. આપણે બધા પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાને વખોડીએ છીએ, પાકિસ્તાનની એમાં સંડોવણીને આપણે છે ને વખોડીએ છીએ અને આપણે એવી અપેક્ષા કરીએ છીએ કે ભારત તરફથી માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી એને પાકિસ્તાનને જડબે સલાક જવાબ આપે, એને માટે આખો દેશ, તમામ વિપક્ષો એ માનનીય વડાપ્રધાનને પડખે છે. એટલે આપણને એવી અપેક્ષા છે કે એ ખૂબ નિકટ ભવિષ્યમાં જ આ દિશામાં કોઈ પગલાં લેવામાં એ આગળ વધશે અને આપણે સૌ એમના સમર્થનમાં, કારણ કે દેશની સુરક્ષા એ સુપ્રીમ છે. આપણા લશ્કરી દળો એ કોઈ પણ ઇમરજન્સીને પહોંચી વળવા માટે, આપણા દેશની રક્ષા માટે એ સક્ષમ છે એવું હું બહુ દ્રઢપણે માનું છું. દિનેશજી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. દિનેશજી,
आपका स्वागत है। और आप मेरे ख्याल से अभी तुरंत, यानी मैं कम बोलूंगा क्योंकि मैं जब गेस्ट को इनवाइट करता हूं तो मैं कम बोलता हूं, और गेस्ट को अनइंटरप्टेड बोलने के लिए मैंने अनुरोध करता हूं। सबसे पहले तो मैं टेक्निकल जो है हिकअप हुआ उसके लिए माफी चाहूंगा मैं थोड़ी सी। अरे नहीं। अ, जो रिपोर्ट्स आई हैं, रिपोर्ट्स अब काफी हद तक मीडिया में आ भी चुकी हैं, लेकिन इसको काफी पहले मुझे जानकारी मिल गई थी। एक्चुअली थोड़ा सा भारत की विदेश नीति में एक मूलभूत बदलाव आया है, ये मुझे प्रतीत हो रहा है। अ, जब कभी भी पहले भारत में इस किस्म के आतंकवादी हमले होते थे तो भारत हमेशा उनके एक डोजियर्स बनाता था, डोजियर्स बना के विभिन्न देशों को देता था, पाकिस्तान को भी देता था, और जो भी संस्थाएं हो सकती हैं उन तक देता था, कि एक सबूत पेश करने की कोशिश करता था कि देखो, वी आर एट द रिसीविंग एंड, और ये सबूत हमारे पास है कि पाकिस्तान ने ये सब करवाया है। पुलवामा हो, उड़ी हो, या मुंबई 26/11 हुआ हो। लेकिन दुनिया की राजनीति या कूटनीति कुछ इस किस्म की है कि वहां पर कभी भी पाकिस्तान को किसी देश ने कटघरे में नहीं खड़ा किया। जब कटघरे में नहीं खड़ा किया तो पाकिस्तान को उससे एक किस्म की एडवांटेज मिल जाती थी, और कोई ना कोई उसका दोस्त, या चीन भी उसका दोस्त है, कई और भी दोस्त है, तो वो उसकी सपोर्ट में आ जाते थे। मुझे भी कई बार लगता था कि हम शायद वर्ड ओपिनियन को कोट करने के चक्कर में या लोगों को कन्विंस करने के चक्कर में हम दरअसल कमजोर हो जाते थे। कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि जब आपको अपने उस ओल्ड डॉक्ट्रिन से हटने की जरूरत होती है, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, शक्तिशाली को जानती है, हाथ में डंडा हो तब जानती है। ये कमजोर को हमेशा रास्ते का पत्थर समझती है एक्चुअली, और जब चाहो तो उसको उठाकर बाहर फेंक देती है। और हमने हमेशा, एक तरह से कहा जाए तो, ह्यूमिलेशन भी सहा, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जो देश थे, उन्होंने भी हमें सपोर्ट नहीं किया। लेकिन इस बार मुझे कई दशकों के बाद पहली बार नीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखते हुए मिला। जब ये पहलगाम हुआ तो पहलगाम के बाद जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है या मीडिया से जो प्राप्त हो रही हैं, वो ये बता रही हैं कि इस बार मोदी जी ने करीब करीब 1 डजन वर्ल्ड लीडर से बातचीत की डायरेक्टली, और उसका एक लबोलुआब ये था कि मैं आपसे मदद मांगने के लिए फोन नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सपोर्ट मांगने के लिए फोन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इसलिए फोन कर रहा हूं कि मैं कन्विंस्ड हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं, और ये आपके लिए एक सूचना है कि आई एम गोइंग टू एक्ट। ये रवैया पहले कभी किसी देश ने देखा नहीं था। यूरोपियन यूनियन का स्टेटमेंट आता है कि वी आर ट्राइंग टू रेस्ट्रेन द इंडियन पाकिस्तान नॉट टू एंटर इनटू वॉर। फिर उसके बाद कई और बड़े देशों ने भी इस किस्म की प्रतिक्रिया दी। चाइना की प्रतिक्रिया भी आई, ऐसी बात नहीं, उन्होंने भी कंडेमनेशन हुआ। लेकिन उस कंडेमनेशन में, किसी कंडेमनेशन के अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं है। हालात इस कदर खराब हो गए कि यूनाइटेड नेशन के अंदर, जो यूएनएससी के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, उसके अंदर जो प्रपोजल आता है, क्योंकि पाकिस्तान इस बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है और इंडिया नहीं है, क्योंकि हाँ। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 टेम्पररी मेंबर होते हैं, यस। तो पाकिस्तान मेंबर है। तो उसके अंदर जो ओरिजिनल प्रपोजल था उसमें टीआरएफ का नाम था, द रेजिस्टेंस फोर्स, जो लश्कर तैयबा का है, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। अपने जो उनकी ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि दे ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस अटैक। और कुछ तो पाकिस्तान की ओर से जो मंत्रीगण थे उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये तो फ्रीडम फाइटर है सारे के सारे। तो कहीं ना कहीं वो जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात थी। जब मामला वहां सिक्योरिटी काउंसिल में आया तो पाकिस्तान ने कहा कि नहीं नहीं, वो एक्चुअली टीआरएफ की जो ट्विटर हैंडल था उसको किसी ने हैक कर लिया, और हैक करके किसी ने अपनी ओर से वो मैसेज छाप दिया उसमें कि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इस मैसेज करके एक्चुअली। तो बचने की कोशिश की, पहले तो जोश में आके बोल दिया कि कुछ होने वाला नहीं, बाद में जब वर्ड प्रेशर आया तो हटा लिया। और दुख तब हुआ कि जब उस सो कॉल्ड विज्ञप्ति में से, या जो एक प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव में टीआरएफ का नाम हटा दिया गया। वहां से अंतिम जो लाइन होती है, जो फाइनल लाइंस होती है, उसमें टीआरएफ का नाम भी पाकिस्तान ने
हटाने में सफलता प्राप्त कर ली चीन के सहयोग से। और अमेरिका ने भी उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, ना रूस ने किया, ना किसी और वीटो मेंबर ने, फ्रांस ने और ब्रिटेन ने भी नहीं किया। लेकिन इधर पिछले कुछ हफ्तों में या महीनों में, जब से ट्रंप साहब आए, दुनिया की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। बदलाव ये आया कि ट्रंप साहब ने सभी वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस को खिड़की से उठा के बाहर फेंक दिया। यूनाइटेड नेशन हो, डब्ल्यूटीओ हो, डब्ल्यूएचओ हो, क्लाइमेट फंडिंग हो, यूएस एड्स हो, इन सबको बाहर उठाकर फेंक दिया तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखा। और वर्ल्ड ऑर्डर यह था कि जो मैं कहूंगा वही फाइनल है। कुछ शायद उन्होंने आज भी कुछ ऐसी बात की है, कल कही कि आई एम रूलिंग द अमेरिका एंड आई एम रूलिंग द वर्ल्ड। ये शब्द उन्होंने कह दिए, आई एम रूलिंग द अमेरिका एंड आई एम रूलिंग द वर्ल्ड आल्सो। वर्ल्ड। इसका मतलब कि वर्ल्ड ऑर्डर मैं लिखूंगा, यूनाइटेड नेशन नहीं लिखेगा, डब्ल्यूटीओ नहीं लिखेगा, डब्ल्यूएचओ नहीं लिखेगा, यूएस एड्स नहीं लिखेगा, या वर्ल्ड बैंक नहीं लिखेगा, मैं लिखूंगा। शायद ये जो घटनाएं घटी जहां पर इन इंस्टीट्यूशंस को उठाकर बाहर फेंक दिया गया, वहां से शायद मुझे लगता है कि मोदी जी को एक आइडिया आया होगा कि ये तो सारी की सारी डिफंक्ट और डिफैंग्ड हैं। डिफैंग्ड में दर्शकों को बता दूं कि मतलब एक ऐसा सांप जिसके मुंह में ना दांत है ना जहर है, डिफैंग्ड। गुजराती में उसे बोखा कहते हैं, बोखा। जी जी। तो तब आ, मोदी जी ने, मेरे मेरे अनुसार जो मेरी समझ है, तब उन्होंने यहां पर इजराइल का डॉक्ट्रिन बनाया। वो डॉक्ट्रिन क्या था? टू हेल विद द वर्ल्ड, टू हेल विद द इंस्टीट्यूशंस। मुझे अपनी आत्म सुरक्षा में जो करना है मैं करूंगा। जो इजराइल ने गजा में किया है, हिजबुल्लाह के साथ किया है, पहले भी करता आया, और दुनिया चीखती रही, चिल्लाती रही, यूएनओ भी चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कुछ क्या कर पाए? क्या नहीं कर पाए। ट्रंप ने एक्शंस लिए इतने सारे, क्या यूएनओ कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। रशिया और यूक्रेन की वॉर में ना जाने कितने प्रस्ताव यूएनओ के अंदर पास हुए रशिया के खिलाफ, और यहाँ वहां, क्या यूएनओ कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। मुझे लगता है इस बात को मोदी जी ने पढ़ लिया कि ये सारी डिफंक्ट और डिफैंग्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जब उन्होंने फोन किया तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपसे सपोर्ट मांगने के लिए या आपकी ओपिनियंस को कोट करने के लिए, आपका सहयोग मांगने के लिए फोन नहीं कर रहा। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं एक्ट करने जा रहा हूं। ये स्थिति पहले किसी वर्ल्ड लीडर ने फेस नहीं की थी, बड़े वाले जिसको फोन किए गए होंगे, कि ऐसा सुनने को मिले कि मैं तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं हूं। और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत बहुत सारी एडवाइजेस के बावजूद भी सबकी कि रेस्ट्रेन रखो, भारत किसी भी दबाव में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बड़ी क्लियर कहा है कि इंडिया डजंट सीम्स टू बी एनी प्रेशर फ्रॉम एनीवन एंड इट इज गोइंग टू एक्ट एंड अटैक पाक। ये वर्ड्स उसके अंदर यूज किए गए हैं। उसके अंदर दिनेश जी, एक दूसरा पॉइंट, एक 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 सवाल करूं बीच में। कौन कौन कंट्रीज के हेड से उन्होंने बात करी होगी? नाम नहीं दिए हैं, लेकिन करीब 1 डजन कंट्री की बात की है, तो बड़े कंट्री है। अब मोदी जी फिजी की तो बात करेंगे नहीं, ना ही मॉरिशस को बात करेंगे, ना ही मालदीव को बात करेंगे, ना श्रीलंका को बात करेंगे। मोदी जी बात करेंगे तो किसी बड़े से ही करेंगे। बड़े में कौन कौन है सबको पता है, मैं अब नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का। तो हिल बी टॉकिंग टू ओनली बिग विग्स, ये तो पक्की बात है, जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हो सकते हैं। ये एक पॉइंट निकल के आया उसमें से। एक दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था कि सामने से वो कहने की कोशिश कर रहे थे शायद दूसरे देश के लोग कि आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा अगर आप अटैक कर रहे हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि यूक्रेन युद्ध के बाद में और इसराइल के युद्ध के बाद में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि जहां पर हिंदुस्तान नहीं समझता कि उसे किसी चीज को जस्टिफाई करना है। ये ये पॉइंट भी बहुत मेन पॉइंट था जो पहली बार निकल के आया। क्योंकि जब इसराइल ने आक्रमण किया था तो उसने जस्टिफाई नहीं किया था कि इसने मेरे पर ऐसे किया तो मैं तब कर रहा हूं, मुझे अब करना है तो करना है, मैं तुम्हारी रेस्ट्रेन की बात सुनने को तैयार नहीं हूं। आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई। तो इंडिया का ये पॉइंट था यहाँ पे कि आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई। मैं इस बार तुम्हें डोजियर्स देने को तैयार नहीं हूं, सबूत देने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैं कन्विंस हूं कि इसने किया है, इसने करवाया है। और तुम कहोगे मुझे सबूत दिखाओ, मुझे तुम्हें कोई सबूत नहीं दिखाने। शायद ये कहने का मतलब ये था कि मैं तुम्हें पिछले 25-30 सालों से बहुत सबूत दे चुका हूं, लेकिन तुमने किसी ने एक्ट नहीं किया उसके ऊपर, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। तो अच्छा होगा मैं तुम्हें सबूत क्यों दूं? आई एम कन्विंस्ड, आई एम जस्टिफाइड। व्हाई शैल आई गिव द जस्टिफिकेशन टू यू दैट आई एम गोइंग टू एक्ट? तो मैं जस्टिफिकेशन भी नहीं दूंगा और मैं एक्ट करूंगा।
मैं तुमसे सपोर्ट भी नहीं मांगूंगा, मैं एक्ट करूंगा। मैं वर्ल्ड ओपिनियन को अपनी साइड में लाने की कोशिश भी नहीं करूंगा, मैं एक्ट करूंगा। लेकिन इनमें जिन लोगों ने सलाह दी इसको इंडिया को रेस्ट्रेन रखने की, उसमें चाइना भी है, उसमें सऊदी अरेबिया भी है, यानी कि MBS है, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उसमें UAE भी है, उसमें कुछ और देश भी हैं, और उसमें यूरोपियन यूनियन भी है प्रमुखता के साथ में। तो भारत से फिर वही पुरानी कहानी, प्लीज कीप रेस्ट्रेन, प्लीज कीप रेस्ट्रेन, आप धीरज रखो, आप संयम रखो, आप तनाव को कम करो, आप आगे मत लेके जाओ। आज एर्डोगान ने भी बोल दिया है। कल बहुत प्रेशर आ गया था एर्डोगान के ऊपर, क्योंकि जब पता लगा कि पाकिस्तान के पास 6 टर्की के प्लेन आए हैं और वेपन्स और बारूद लेके आए हैं वहां पर, तो दिन में हिंदुस्तान में बड़ा बवेला हुआ। दिन में बाइकॉट टर्की की बातें शुरू हो गई कि टर्की का टूरिज्म बाइकॉट करो। टर्की को लगा तो नुकसान हो रहा है। शाम को टर्की गवर्नमेंट निकल के सामने आ गई, कल रात को मेरे ख्याल से शायद 6-7 बजे होंगे रात को, जब उनका ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन आते हैं, कहते हैं हमने कोई हथियार नहीं भेजे उनको, हमारे कोई प्लेन पाकिस्तान नहीं गए हैं, हमारा एक मिलिट्री प्लेन था जो कहीं और जा रहा था, वो पाकिस्तान में उतरा, कराची के अंदर उतर के सिर्फ रीफ्यूलिंग किया, ना कोई माल उतारा ना कोई माल लिया, सीधा अपने डेस्टिनेशन में चला गया दूसरे देश की ओर। तो टर्की को डैमेज को कंट्रोल किया। शायद सबको इस बात का एहसास हो रहा है कि कुछ होने जा रहा है। तो बहुत सारे मामलों में ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी, ये अपने आप में एक पैराडाइम शिफ्ट है भारत की विदेश नीति के अंदर। मैंने विदेश नीति को इतना एग्रेसिव कभी नहीं देखा था। एग्रेसिव थी लेकिन इस लेवल पे नहीं थी कि मैं आपकी परवाह नहीं करता, मैं आपको जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, मैं आपकी मदद भी नहीं मांगता, मुझे वर्ल्ड ओपिनियन अपने साइड में नहीं लेनी है। बहुत सारे वर्ल्ड हमारे विश्लेषक हैं जो कहते थे कि इंडिया को भी तो मदद की जरूरत होगी, तो कौन इंडिया की मदद करेगा, इंडिया हैज टू कोट द ओपिनियन, तो लॉट ऑफ कंट्रीज को अपने साइड में लेना पड़ेगा। तो आज सुबह इसराइल का स्टेटमेंट आ गया, आई स्टैंड बाय यू, आप जो भी कदम उठाएंगे मैं आपके साथ खड़ा हूं। और एक क्वालिटेटिव चेंज और आया है जो पहले कभी नहीं था इंडिया में, और वो ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जूस लॉबी स्टैंड बाय इंडिया, जूस सर, लॉबी स्टैंडिंग बाय हाँ, इंडिया इन इजराइल एंड इन अमेरिका। ये पहले ये जूस पॉइंट कोई नोट नहीं करता। सर, जूस लॉबी का तो इस्लामोफोबिया का जो खेल है वो तो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही। मगर मगर पाकिस्तान के पक्ष में चाइना यदि आ जाता है, और चाइना ने बहुत स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का पक्ष लिया हुआ है, तो क्या होगा? दोहरे फ्रंट पर हम लड़ेंगे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि चाइना का 5वां बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इंडिया है। लोगों को पता नहीं है, सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका है, नंबर 2 पे उसका ट्रेड पार्टनर जो है जापान है, तीसरे पे कोरिया, चौथे पे वियतनाम, और इंडिया को हांगकांग मिला के $138 बिलियन का एक्सपोर्ट है चाइना का इंडिया को। $138 बिलियन, ये अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 12 लाख करोड़ के बराबर है। करोड़ों नौकरियां चाइना में हमारी वजह से लोगों को पैसे मिलते हैं। कोई मूर्ख होगा जो $138 बिलियन का एक्सपोर्ट दांव पे लगाएगा। चीन अपने घर में आग नहीं लगाएगा सर, चीन थोड़ा बहुत हथियार देता रहेगा आगे पीछे करके, ये मैं मानता हूं, लेकिन चीन सेकंड फ्रंट खोल देगा। ऑलरेडी उसके घर में आग लगी हुई है अमेरिका के कारण, और वो दूसरे घर में भी आग लगा लेगा अपने। चाइना नहीं आएगा सर, लिख के रख लीजिए आप, सेकंड फ्रंट नहीं खोलेगा सर। ट्रंप हैज टू बो डाउन। चाइना चाइना की धमकी से ट्रंप ढीला पड़ ही गया है, ये तो हकीकत है। तो चाइना इज पावरफुल ना। चाइना पावरफुल है, लेकिन आजकल की जो वॉर होती है ना सर, वो मिलिट्री वॉर नहीं है सर, इट्स इकोनॉमिक वॉर। आप इकोनॉमिक वॉर को कब तक सस्टेन कर पाएंगे, ये प्रश्न उठता है। वो इंडिया से टक्कर क्यों लेगा? उसे पता अगर अमेरिका मेरे हाथ से निकल गया, पार्टली भी निकल गया, तो मेरा माल कहां बिकेगा सर? वो बिजनेसमैन है, ही इज ए कैपिटलिस्ट कंट्री सर। आप चाइना को एक कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में ना देखें, आप चाइना को एक कैपिटलिस्ट कंट्री के रूप देखें, ये उसे धंधा करना है सर। एंड अमेरिका पाकिस्तान को ग्रांट देता था, चाइना नहीं देता ग्रांट सर। we believe that we stand by our prime minister, whatever decision he is taking, the entire country is with him। और मेरे ख्याल से युद्ध होना है तो हो जाए, क्या कहेंगे? देखो, होना तो हो जाए। अगर पाकिस्तान की इतनी इच्छा है कि एक बार को युद्ध होना है, तो भाई हो जाए।
लेकिन हाँ, नई जनरेशन जो वीडियो गेम्स की जनरेशन है, मोबाइल गेम्स की जनरेशन है और ड्रीम इलेवेंस की जनरेशन है, उन्हें भी एक बार पता लगे कि युद्ध की विभीषिका क्या होती है। इस मिलेनियल्स को तो पता ही नहीं कि युद्ध क्या कहते किसको है। उन्होंने तो वीडियो गेम्स में देखा है युद्ध क्या होता है, उन्होंने तो सिर्फ पर्दे पे देखा है युद्ध क्या होता है। लेकिन जब औरतें विधवा होती हैं, बच्चों के पिता चले जाते हैं, माँ बाप के बच्चे शहीद हो जाते हैं ना, तो वो एक एक्चुअलिटी है, वो और हकीकत है, दोनों उससे परमाणु आज की शक्ति है, जनरेशन वाकिफ नहीं दोनों है। परमाणु शक्ति है। सर, परमाणु शक्ति का यूज करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत जिगर चाहिए। इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती। इट्स ए डेटरेंट। और अगर किसी ने शुरू कर दिया, अगर उनको लगता है शौक है, खिलौना है, शुरू कर सकते हैं, तो शुरू कर दीजिएगा। अंत तो हम ही करेंगे ना। सही बात है। आप दिनेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, ये बहुत स्पष्ट रूप से आपने जो एनालिसिस हमें समझाया, मेरे ख्याल से दर्शकों को भी ये भाया होगा। મિત્રો, આજે દિનેશજી આપણી સાથે જે વાત કરી છે એ વિશ્લેષણ મારે માટે, તમારે માટે અને આપણા સૌને માટે એ ખૂબ મહત્વનું છે. અને ભારત જે કંઈ નિર્ણય લે, આપણી સરકાર જે કંઈ નિર્ણય લે એની સાથે આપણે પણ છીએ, એ બાબત બહુ સ્પષ્ટ છે. દિનેશજી, આપ અમારી સાથે જોડાયા. દર્શકો વતી અને મારી વતી હું આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. थैंक यू सर।